Good morning, dear students. Now the last topic of the chapter, how do metals and non-metals react with each other. Let us take metal sodium and non-metal chlorine. How these both of them react with each other. Sodium has atomic number 11 while chlorine has atomic number 17. Now the configuration of sodium is 281 and the configuration of chlorine is 287. Now sodium has a tendency to lose one electron in order to complete its octet, while chlorine has a tendency to take one electron to complete its octet. सोडियम अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. तो सोडियम क्या करेगा, Na minus 1 electron, it will become Na positive. सोडियम के पास प्रोटॉन 11 थे, इलेक्ट्रॉन भी 11 थे. जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, लेट मी राइट हियर कॉन्फिगरेशन आंसर 281. जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इधर कॉन्फिगरेशन आ गया 28. प्रोटॉन विल रिमेन सेम while electron will become 10. Now come to the chlorine. Chlorine will gain one electron and it will become Cl negative. Here positive sign is there because it has one extra proton. Now chlorine will gain one electron, chlorine will gain one electron and it will become Cl negative. Chlorine configuration 287 means it has proton 17 and electron also 17. When it gain one electron, the configuration will become 288. Proton will remain 17 while electron become 18. It has one extra electron, so this ion become negative. It will become fluoride ion, that is Cl negative. Now how both of them combine, how they react with each other. Sodium has one electron in its outermost shell plus chlorine, it has 7 electrons. I am representing these electrons with the help of cross. What they will do, sodium will lose one electron. Lose one electron means it will give this electron 1 2 3 4 5 6 7. It will give this electron to this one. तो क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव. अब इसने एक इलेक्ट्रॉन पूरा दे दिया तो इसके पास तब इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इट विल बिकम Na पॉजिटिव. और क्लोरीन ने क्या किया, 7 इसके अपने थे और एक सोडियम का ले लिया, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, दैट इज वाई द चार्ज बिकम नेगेटिव. लाइक दिस bond is formed between sodium and chlorine. So this is NaCl. In this case you are seeing here that one element like metal here, metal lose electron and non-metals gain electron. So there is a transfer of electron from metal to non-metal. This type of compound or the bond in which there is a transfer of electron from metal to non-metal are called electrovalent compounds, or the bond formed between them are called electrovalent bond. Electrovalent bond or compound. Let me write the definition of compound. The compound formed by the transfer of electron from metal to non-metal. अब जरूरी नहीं कि एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मे बी 1 2 or 3.
These type of compounds are also called ionic. इसका दूसरा नाम ionic भी है क्योंकि इसके अंदर आयंस बनते हैं बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव। और इस तरह का जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है उसके बीच में Na और Cl के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और ये कंपाउंड क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल, मैग्नीशियम क्लोराइड। बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड के केस में Mg 12 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर उसका 12 होता है और क्लोरीन का वही 17 है। अब देखो इसमें मैग्नीशियम 282, 12 इलेक्ट्रॉन, कॉन्फिगरेशन इज 282, it will lose 2 electron and form Mg 2 positive 2 8। क्लोरीन का सेम रहेगा वही, Cl -1 +1 electron gives Cl negative means 287 and it will become 288। Now how the transfer of electrons takes place? Magnesium has 2 electrons in its outermost shell plus chlorine 1 2 3 cross 4 5 6 7, but you see here there is only one space. So what we will do, we will take 2 chlorine 1 2 3 4 5 6 7 and write now plus in between this Mg. Now we can write like this, Mg has 2 electron. This Mg will give 1 electron here and 1 electron here. Now the compound form will be like this, Mg 2 positive because it will lose these 2 electrons, and each chlorine will get only 1 electron. So 1 2 3 4 5 6 7 and 1 electron, negative sign because 1 chlorine is getting 1 electron, but there are 2 chlorine, same type के 2 chlorine है, so the formula will become whole twice or it is MgCl2। How the transfer of 2 electrons takes place you can see here. Let me explain you one more example. Instead of chlorine, let us take oxygen here. Oxygen, atomic number E, configuration 2 6. Oxygen has configuration 2 6. It will take 2 electron and become O2 negative 2,8. Now let me replace here chlorine by oxygen. Now magnesium has 2 electron plus O, oxygen has 6 electron. This electron will take this place and this one this place. Mg lose 2 electron while oxygen gain 2 electron. These 2 electrons given by the magnesium will take this place. So 1 2 3 4 5 6 7 8 and here is a bracket like this. Magnesium oxide will be formed. This is MgO. Do the practice of some more electrolyte compounds. How the transfer of electrons takes place from metal to non-metal. Now beta next topic is properties of electrolyte compounds. अभी मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड पढ़ाया, अब मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता रही हूँ बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 4 की 4 प्रॉपर्टीज आपको लर्न करनी है। इनमें से कभी कभी तो 4 की 4 प्रॉपर्टीज पूछ ली जाती हैं या फिर किसी भी एक प्रॉपर्टी का रीजन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। अच्छा, सबसे पहले जब भी इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड के बारे में आप पढ़ते हो, आप अपने दिमाग में नमक के बारे में सोचो, NaC। नमक आप घर में यूज करते हो, आप उसको वाटर के अंदर डिजोल्व करते हो, ठीक है। और उसके बाद आपने देखा होगा सॉलिड साल्ट भी आता है। आप लोगों के घरों में तो क्रिस्टल की फॉर्म में आता है, छोटे छोटे दाने होते हैं, बट एक्चुअली जहाँ से ये इकट्ठा किया जाता है समुद्र के किनारे से, वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर के रूप में, जिस तरह से बड़े बड़े पत्थर होते हैं उस तरीके से इसको कलेक्ट किया जाता है। तो उस तरीके से भी दिमाग में सोच के रखना। दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। अगर वो बड़ा पीस लेते हैं, आप उसके ऊपर थोड़ा मारो, आप देखना वो एकदम बिखर जाएगा। मीन्स नमक जो है ना टूट जाता है। पहले के लोग यही नमक यूज़ करते थे, आजकल भी शायद जिसके पास गाय भैंसे वगैरह होती हैं वो लोग यूज़ करते हैं इसको उनके लिए। तो इसमें मैं आप, क्योंकि आप बोलोगे नमक तो हार्ड एंड ब्रिटल होता ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप पाउडर्ड फॉर्म में देख रहे हो उसको, क्रिस्टल्स फॉर्म में है। लेकिन अगर आप उसका बड़ा, जैसे काला नमक आता है वो देखा होगा आप लोगों ने, तो उसको अगर थोड़ा मारते हो तो उसको वो बिखर जाता है। तो वही है, वो हार्ड और ब्रिटल होते हैं। और वो हार्ड और ब्रिटल क्यों होते हैं? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। Na के दो आयन्स बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए हार्ड एंड ब्रिटल है। नंबर 2, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अगर हम चाहें कि नमक को गर्म कर लिया जाए, अगर आप नमक को गर्म करते हो तो बहुत हाई टेम्परेचर पे जा करके मेल्ट होता है बेटा। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक इंट्राआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो बहुत सारी हीट चाहिए इसको मेल्ट करने के लिए। मेल्ट तो हो जाएगा, पत्थर भी तो मेल्ट होता है, तभी तो आप देखा होगा गोल गोल पत्थर आते हैं, तो वो कभी मोल्टन स्टेट में थे, उसके बाद उन्होंने वो शेप ली है। तो ये भी मेल्ट होता है, लेकिन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, इसलिए इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। सॉल्युबल इन वाटर, वो आप लोगों ने देखा ही होगा घरों में, अगर इसको पानी के अंदर डिजोल्व करते हो तो ये कम्प्लीटली सॉल्युबल है। लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक पेट्रोल, केरोसिन, उसमें ये इनसॉल्युबल है। आप ये घर में कर सकते हो, आपके घर में तेल होगा कोई, आप उसके अंदर डिजोल्व करके देखो, ये डिजोल्व नहीं होगा। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस स्टेट, सॉलिड स्टेट में नहीं करेगा। अगर आप बीकर के अंदर सॉलिड नमक ले लेते हो, जैसे ये नमक डाल दिया और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाओ, इसके बाद इधर आप बैटरी लगाओ और इधर आप बल्ब लगा दो, और अगर चाहो की लगा दो इधर, और अगर आप चाहो कि क्या ये बल्ब ऑन होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि बेटा जो सॉलिड स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट के अंदर आयंस जो होते हैं फ्री नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि लिक्विड स्टेट के अंदर तो आयंस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। लेकिन जब आयंस का मूवमेंट नहीं होगा तो इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड में आयंस मूव कैसे करेंगे? तो इसीलिए सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अब आप क्या करो, इसके अंदर वाटर डाल दो, वाटर जब डालोगे तो ये इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा। जैसे ही डिजोल्व हो जाएगा, इसके अंदर कौन से आयंस मूव करेंगे? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग। और हमेशा ग्लो करने के लिए बल्ब को इस तरीके से दिखाओगे बेटा, ठीक है। अब आ जाओ मोल्टन स्टेट में। अब अगर आप नमक को पिघला देते हो, सॉलिड फॉर्म में तो आयंस फ्री नहीं है मूव करने के लिए, अगर आप इसको हीट देके इसको मेल्ट कर देते हो, जब आप मेल्ट कर देते हो तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हीट के कारण, वो ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक होने के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि उसके अंदर आयंस फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए। सो these were the properties of electrolyte compound. Again I am saying that बेटा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड्स क्या होते हैं जिसकी डेफिनेशन करोगे। हाउ द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड टेक्स प्लेस, मीन्स आयंस के जो इलेक्ट्रॉन्स है कैसे मेटल से नॉन मेटल की ओर जाते हैं, जो इससे पहले मैंने आपको समझाया। उसके 2-3 एग्जाम्पल्स और करना जो आपकी बुक के अंदर है। कहीं डिफिकल्टी है तो यू कैन कंसल्ट मी। और इस तरीके से 4 प्रॉपर्टीज विद रीजनिंग यू हैव टू लर्न।